So, as previously we discussed about the theme of the of this chapter, power sharing. It is going to be very interesting because it has a lot of information about these two countries, which I said you in the previous also. What we are going to study about Belgium and Sri Lanka, the ethnical composition and the political background of these two countries, right? So it is going to be very interesting because you are going to learn about something new about a country which you don't know. Till now, we only know that Sri Lanka means is in the south of India, but we don't know what is Sri Lanka, what's the political composition. So you are going to study in this everything about Sri Lanka. Now talking about Belgium, as given in your book, first it is given discussed about Belgium. So I'll proceed to Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germans and Luxembourg. It has population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Okay, so it has talking about Belgium. Belgium is a small country in Europe. You know, Europe is a continent and it has many big countries such like Russia, France, right, etc, etc. So Belgium is one of that smallest country. You can see the map also, which is given in your book. It is very small country, smaller in this area. It has compared Belgium is being Belgium, not only Belgium, Sri Lanka is also compared with Haryana. Okay, हरियाणा से कंपेयर किया गया दोनों को. तो एरिया इज बीन कंपेयर्ड. इट इज़ स्मॉलर देन हरियाणा. बेल्जियम इज स्मॉलर देन हरियाणा. इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस. This line you should underline with your pencil. The means this line. It has border with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है कि बेल्जियम किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. और ये ना तुम लोग यू कैन रिमेंबर दिस थिंग एज अ जीके क्वेश्चन ऑल्सो. जब भी तुमको फ्रांस के बारे में पूछा जाए ना तो तुम बेल्जियम को ले सकते हो. इफ़ इट इज़ आस्क्ड अबाउट समथिंग, इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि फ्रांस किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इफ़ यू डोंट नो एनी ऑफ दोज कंट्री यू कैन राइट दिस कंट्री, राइट. सो I think so you are underlining. It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has population of, continue your underline. It has a population of little over 1 crore, about the half of Haryana. That's it. Just stop underlining. This is the main point. Okay, up to the ethnical composition. Ethnic means because it has given in the pink words and the meaning is also given at the bottom. So a social division based on shared culture, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities and their other thing. So country has been divided because of the caste and religions. ये समझ सकते हो. इसमें बोला है ना पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कल्चर. तो वही सेम कल्चर के लोग को डिवाइड किया गया. मतलब अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में, वो हम उसका एथनिकल कंपोजिशन, मतलब कास्ट और कल्चर और रिलीजन तो नहीं, कास्ट और कल्चर के हिसाब से या स्पीकर्स के हिसाब से कैसे बेल्जियम को बांटा गया था, बेल्जियम को कैसे सेपरेट किया गया है. सेपरेट नहीं, कैसे इसको बांटा गया है. बांटा मतलब ज़मीन से तोड़ना नहीं, किस तरीके से वो डिवाइडेड है ना. अभी तुम लोग देखो साउथ में, इंडिया का एग्जांपल लो, नॉर्थ में, साउथ में और ईस्ट वेस्ट में, सब में अलग अलग स्पीकर्स है, मतलब अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं. साउथ में तमिल्स हैं, तेलुगुस है, राइट. बहुत रेयर ही कुछ अदर कास्ट के लोग मिलते हैं, राइट. इंडिया इज़ ऑल्सो डिवाइडेड लाइक दिस. इफ़ यू गो मोर डीपली अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एंड अकॉर्डिंग टू सिविक्स, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट. बट तो जैसे वो है ना, वैसे सेम टू सेम अभी हम लोग बेल्जियम का भी करेंगे. ठीक है, बेल्जियम का किया है, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इस सब चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स कल्चर इज़ नोन एज एथनिक.
एथनिक बोलते हैं. एथनिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री मीन्स हाउ द कंट्री इज डिवाइडेड एज इन द मीन ऑफ व्हाट पीपल्स कल्चर. कैसे पीपल्स के कल्चर में एक कंट्री को डिवाइड है. अभी एथनिकल कंपोजिशन ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ा है, राइट, उसका तो बहुत बड़ा है. इट इज़ हाफ ऑफ द हरियाणाज. यू कैन सी हरियाणा एक स्टेट है इंडिया में. तो सोच सकते हरियाणा का हाफ है तो ये बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा है. सो दैट इज़ एथनिकल कंपोजिशन. मतलब समझो, एथनिकल कंपोजिशन मतलब पीपल्स को उनके कल्चर के हिसाब से डिवाइड करना. ऐसा नहीं कि हट जाओ तुम इस जगह में नहीं रह सकते, बट दिखाना मतलब कि टू शो हाउ इट वॉज डिवाइडेड. इट इज़ नॉट सेइंग इट इज़ डिवाइडेड, इट वॉज डिवाइडेड एट अ टाइम. सो yeah, the ethnical composition of this small country is very complex. It is small but it is very complex to understand the ethnical composition of Belgium. Of the country's total population, 59% पूरे कंट्री के पॉपुलेशन में 59% lives in Flemish region and speak Dutch. Okay, and another 40% people live in the Walloon region and speaks French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. Okay, अब समझ में आया एथनिकल कंपोजिशन मतलब क्या है. So you underline this all part from 59% till speaking, right. तो पूरे कंट्री के पॉपुलेशन में अबाउट 59%, यू कैन थिंक ऑफ 59% इज़ द मोस्ट. देखो डिवाइड करते जाओ अपने दिमाग में. 59% सबसे ज़्यादा है, ठीक है. मेजर में क्या है, 59% है. 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो लोग डच बोलते हैं. डच एक लैंग्वेज है, वो बोलते हैं. और 40% ऑफ पीपल जो वैलन रीजन में रहते हैं वो लोग फ्रेंच बोलते हैं. एंड द रेस्ट रिमेनिंग ओनली 1% बेल्जियन के, वो लोग जर्मन बोलते हैं. नाउ दैट इज़ टू ऑपोजिट इन द कैपिटल सिटी, ठीक है. कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में यू कैन सी इन द मैप ब्रुसेल्स कितना छोटा कैपिटल रीजन देख सकते हो. उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन पूरे कंट्री में सिर्फ 40% बोलते हैं. लेकिन इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम 80% ऑफ पीपल स्पीक French and 20% speak Dutch. पूरा ऑपोजिट है, you can see. and none of them speak German. German speakers कोई भी नहीं है. कहाँ, कैपिटल सिटी में. but in the whole country they are. कंट्री में है बट कैपिटल सिटी में नहीं है. ओके, minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but minority in the capital. So, समझ में आ गया. मैं पहले से बता रही थी कि एक चीज़ देखते जाओ, परसेंटेज वाइज अपने दिमाग में डिवाइड करते जाओ कि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग सबसे ज़्यादा है. अब देखो इंडिया में सपोज पूरा सपोज लो. सपोज इंडिया में हिंदी बात करने वाले 80% है. बट आई एम सेइंग पूरा सपोज लेना, ठीक है. मैं एकदम सही सीरियसली नहीं बोल रही हूँ. बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इंडिया पूरे होल कंट्री, पूरे 29 स्टेट्स को एक स्टेट से कंपैरिजन किया गया है, बिकॉज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो वैसे ही है. मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई एक ही कंट्री में तो पूरा, अब जैसे बोल रहा है होल कंट्री में तो ब्रुसेल भी आता है. सो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ब्रुसेल भी आता है, तो ब्रुसेल्स को अलग से क्यों बता रहे हैं? बिकॉज ब्रुसेल इज़ द कैपिटल एज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सेम ब्रुसेल इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ व्हाट, बेल्जियम. तो ब्रुसेल एक जगह है, ठीक है. तो
उसको पूरे कंट्री में जितने जगह है उसको एक ब्रुसेल से कंपेयर किया गया। वाई? बिकॉज इट इज़ द कैपिटल। सो पूरे कंट्री में 59% लोग क्या बोलते हैं? जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो लोग डच बोलते हैं। डच लाइक लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं। 59% मेजोरिटी है कि नहीं है? देन इट गोज़ ऑपोजिट इन द व्हाट? कैपिटल रीजन। सिर्फ 20% ऑफ लोग डच बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ लोग। ठीक है, समझ गए? डच पूरे कंट्री में 59% बोलते हैं, बट इन द कैपिटल सिटी ओनली 20%। नाउ नेक्स्ट कम्स टू फ्रेंच। पूरे कंट्री में सिर्फ 40%, ओनली 40% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच इन द होल कंट्री, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम दैट इज़ ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रांस नहीं, मतलब फ्रेंच। फ्रांस एक जगह है। फ्रेंच लैंग्वेज पूरा 80% ऑफ पीपल बोलते हैं, बट ओनली वन एक्सेप्शनल इज दैट 1% ऑफ पीपल लिविंग इन द होल कंट्री स्पीक जर्मन, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स देर इज़ नथिंग, no one person speaks German. चलो वो तो छोड़ दो, बट नाउ इट केम्स ऑन द टॉपिक फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग. French speaking people were low as compared to the Dutch speakers. 59 और 40 में अंतर होता है. 59% ऑफ पीपल डच बोलते हैं और सिर्फ 40% ऑफ पीपल फ्रेंच बोलते हैं. लेकिन इतना माइनॉरिटी होने के बावजूद भी जितना भी मतलब फैसिलिटीज़ था वो फ्रेंच स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा मिलता था. यू कैन सी द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. समझे व्हाट डज इट मीन्स टू से? फ्रेंच स्पीकर्स कम ज़रूर थे, बट दे वर गिवन मोर resources as compared to Dutch speakers. Minority of the French speakers were more relatively rich and powerful because they were provided every aspects which were asked by them. Why? You must be thinking क्यों? अरे भाई वो माइनॉरिटी है, हम मेजर पॉपुलेशन को देखेंगे. सपोज क्लास में से पूरा 50% है एंड ओनली 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग मी रिस्पॉन्स. रेस्ट द 10 स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू मी. आई विल सी 40 और 10. मैं 40% ऑफ बच्चों को देखूंगी या 10% बच्चों को देखूंगी? 40%. इट्स नॉट लाइक दैट आई विल रिग्रेट दैट 10. वो 10 को भी मैं चाहूँगी कि मैं उसको मतलब उनके प्रोग्रेसिव को थोड़ा अच्छा कर सकूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आई विल बी सेटिस्फाइड दैट व्हाट आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रंस आर लिसनिंग. वाई? बिकॉज 50 में 40 मुझे एकदम क्विक एंड गुड रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी 10 नहीं दे रहे. 40 तो दे रहे. तो तुम लोग भी सोच रहे होगे मैम 59% में 40% सिर्फ बोलते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को इतना क्यों दिया गया है, इतना रिचनेस क्यों दिया गया है, सारे नीड्स को क्यों सेटिस्फाई करते हैं? बिकॉज यू सी इन द ब्रुसेल सिटी 80% फ्रेंच स्पीकिंग. कहाँ मेजोरिटी है? मेजोरिटी कहाँ है? अब देखो दिल्ली में गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर में है कि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को जाके डांटे या दिल्ली को बोले कि ऐसा क्यों कर रहा है? दिल्ली में है ना, गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट वहाँ पे है. पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट वहाँ पे, जो भी डिसीजन लेना है वहाँ से होगा, राइट? दे विल टेक द डिसीजन. तो उनके जगह में उनके हिसाब से फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, तो उन लोग पूरे कंट्री में फ्रेंच स्पीकर्स को ज़्यादा देंगे, राइट? वही चीज़ हुआ है यहाँ पे सिटी में सबसे ज़्यादा फ्रेंच स्पीकर्स है, तो फ्रेंच स्पीकर्स को ज़्यादा देते हैं. तो माइनॉरिटी होने के बावजूद, इसमें क्या है, इसमें बोलना क्या चाहता है? माइनॉरिटी होने के बावजूद भी फ्रेंच स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा वो मिलता है, पावर्स मिला था. एंड दे हैव अ रिलेटिविटी रिच एंड पावरफुल बिकॉज दे वर सेटिस्फाइड बाय देयर एवरी नीड्स एज कम्पेयर टू डच स्पीकर्स. Dutch speakers was
resented by the this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic growth and development and education much later. देखो ऐसा नहीं था कि डच स्पीकर्स को मिला ही नहीं, इनको भी मिला, लेकिन एज दे वर प्रोवाइडेड मच लेटर एज कम्पेयर टू फ्रेंच स्पीकर्स. This led to tension between Dutch speaking and French speaking communities during 1950 and 60 में इसके लिए एक टेंशन हो गया था, मतलब मतभेद हो जाना. The tension between the two communities was more acute in Brussels. ब्रुसेल में सबसे ज़्यादा था. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the. देखो पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा डच स्पीकिंग पीपल्स है, लेकिन सिर्फ सिटी मतलब सिर्फ कैपिटल ऑफ दैट कंट्री में 20% है. तो ब्रुसेल में सबसे ज़्यादा लड़ाई मतलब मतभेद वहीं से होता था. क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी कैपिटल सिटी में है, लेकिन पूरा मेजॉरिटी पूरा कंट्री में है, लेकिन फिर भी फ्रेंच स्पीकर्स को उनसे ज़्यादा राइट्स मिला था सब चीज़ के लिए. पहले मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पहले, बाद में मिला, डच स्पीकिंग को भी मिला, लेकिन बहुत लेट में एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच स्पीकिंग. फ्रेंच स्पीकिंग को बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन डच स्पीकिंग को कम मिला था. वो कम मिला भी कब मिला? जब एक मतभेद हुआ था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में ब्रुसेल में. क्योंकि ब्रुसेल में यही एक प्रॉब्लम था, क्योंकि डच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी थे पूरे कंट्री में, बट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी थे कैपिटल सिटी में. तो अब तुम लोग सोच रहे होगे, तो अब मैम आप बताना क्या चाहते हैं? आपने बता दिया, ये मैंने सिर्फ एथनिकल कंपोजिशन बताया है, सिर्फ और सिर्फ एथनिकल कंपोजिशन आई जस्ट सेड अबाउट द बेल्जियम. अभी मैं ये नहीं बताई हूँ कि कैसे पावर शेयर किया गया था. मतलब होते हैं ना कि मुश्किल समय में जब अच्छा डिसीजन लेते हैं ना, तो उसका जवाब ही नहीं, राइट. वी यूज्ड टू से मुश्किल सिचुएशन में अच्छा डिसीजन लेना. तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इतना मुश्किल सिचुएशन में कैसे डिसीजन लिया था गवर्नमेंट, ये सोच रहे होगे तुम लोग. हाउ इट हैज़ मैनेज्ड देयर सिटीजन्स. सो वी विल रीड दैट इन द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बेल्जियम के जो गवर्नमेंट थे वो इतने वर्स्ट सिचुएशन को कैसे वो हैंडल करके उसको पूरा इक्वल दिए, दोनों को दिए तो दिए, बट they shared the power, but equally they shared the power, so no one could get hurt by them, and another tension should not be occurred. इस चीज़ के लिए दोनों को इक्वली राइट्स दिया गया. बट दैट हैपन टू ऑपोजिट इन श्रीलंका. पूरा ऑपोजिट हुआ है श्रीलंका में. वो क्या ऑपोजिट हुआ है, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, उसका एथनिकल कंपोजिशन, और उसके बाद श्रीलंका के पर बहुत बड़ा स्टोरी है. उसमें जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है सिटीजन्स के लिए वो बहुत गलत लेती है. तो उसके लिए वी विल डिस्कस इट एंड वी विल स्टडी मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ श्रीलंका एंड देन वी विल प्रोसीड टू एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम. इन बिटवीन दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मीन्स हाउ बेल्जियम बैलेंस्ड इट्स सिटीजन्स. बेल्जियम के बारे में इस बीच में पढ़ोगे, दोनों को एज साइमल्टेनियसली you will read, but till now we read about Belgium's ethnical composition and we understood about that, right? So today आज के लिए बेल्जियम का ethnical composition over. Next we will study about Sri Lanka and its ethnical composition. Okay, till then bye and